Hello dear students, greeting of the day. This is the third lecture of unit 4. इसके पहले हम लोगों ने लास्ट के 2 लेक्चर्स में डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के डिफरेंट मेथड्स चेक के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का एक और मेथड इन विच वी टेस्ट द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल is the hardness test. So what is hardness? Different industries have different meaning of hardness. So here are some definitions. The metal handbook define hardness as resistance of metal to plastic deformation, usually by indentation. Or the dictionary of metallurgy defines the hardness as the resistance of a material to indentation. So the resistance to indentation is defined as the hardness of the material. Or the hardness has variety of meanings. For metal industry, resistance to permanent deformation is called hardness. For metallurgist, resistance to penetration. For mineralogist, resistance to scratching. And for the machinist, resistance to machining. Okay. The purpose of hardness testing. The principal purpose of hardness test is to determine the suitability of a material for a given application. ठीक है. The ease with which the hardness test is performed has made it the most common method of inspection for metals and alloys. So next is the general type of hardness testing. Okay. The current practice in USA divides hardness testing in 2 categories. First one is the macro hardness and second one is the micro hardness. Okay. So macro hardness refer to the testing with applied load on the indenter of more than 1 kg and the material being tested are tools, dies and seed materials in the heavier gauges, that is in large scale. The hardness test with large indentation may be regarded as destructive test. Okay. If the applied load for the testing is greater than 1 kg, then that fall in the category of macro hardness. So in macro hardness, the tests are Rockwell hardness test, Brinell hardness test, and the Vickers hardness test. Okay. Now the next one is the micro hardness. Refer to the testing with applied load are 1 kg or below. The material being tested is very thin. Okay. जब हमारा जो मटेरियल है जिसकी थिकनेस क्या हो, अगर 0.0125 mm तक हो, तब उसकी हार्डनेस चेक करने के लिए हम जिस हार्डनेस को यूज करते हैं वो क्या होता है, माइक्रो हार्डनेस की कैटेगरी में फॉल करता है. और जब उसका क्या है, उसके ऊपर जो लोड हम यूज कर रहे हैं फॉर द हार्डनेस टेस्टिंग इज इक्वल टू और लेस देन 1 kg. ओके. सो फॉर माइक्रो हार्डनेस टेस्ट, लूप डायमंड एंड विकर डायमंड pyramids, 2 tests are there. So actually we are here to know about the destructive testing method. So for the material as a mechanical engineer, हम लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या होता है, आपका मैक्रो हार्डनेस. ठीक है. तो हम देखते हैं आगे जो मैक्रो हार्डनेस की जो 3 मेथड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, रॉकवेल हार्डनेस, ब्रिनेल हार्डनेस एंड विकर हार्डनेस, इसको हम एक एक करके इसको इस लेक्चर में कवर करते हैं. ओके. कि सब क्या डिफरेंस है और कैसे किया जाता है. हालांकि आप सभी ने रॉकवेल और ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट फर्स्ट ईयर में आपने बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुआ था, उसके बारे में पढ़ा है. ठीक है. तो पर फिर भी यहाँ पर हम उसको आगे देखते हैं. ओके. So first one is the Rockwell hardness test. Okay. Introduction. The S.P. Rockwell, a name of the scientist. S.P. Rockwell announced a hardness test in 1919 in the United States. However, it was used to practicals by C.H. Wilson. Okay. Next, the different weight composed of different material indenter will inspire various usage. There are 2 kinds of indenter. One is with steel head and other is with diamond head. Rockwell hardness test is the most popular hardness test
nowadays. Okay, जो इंडेंटर हम जो यूज करते हैं वो जनरली क्या होता है, 2 टाइप का होता है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट के लिए. फर्स्ट, या तो वो क्या होगा, स्टील का बना हुआ होगा. Okay, the indenter one is with steel head and the other is with diamond head. Okay, the test procedure, in this we apply a minor load of 10 kg, then the dial is set to 0 and then major load is applied. Okay, here we use 2 loads. First one is a minor load and then the major load. The minor load is fixed, that is of 10 kg. Okay, then after the application of major load, then apply a major load up to 60 to 150 kg according to the scale used for 4 to 5 सेकेंड. ठीक है, कि हम किस स्केल पर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 60 किलो से लेके 150 किलो तक का लोड हम लगाते हैं, जो कि क्या है हमारा मेजर लोड फॉर 4 to 5 सेकेंड ऑन द स्पेसिमेन. आफ्टर 4 to 5 सेकेंड रिलीज द मेजर लोड ओनली. ठीक है, जो हमारा मेजर लोड लगाया था हमने 60 to 150 kg, उसको हम क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, बट द माइनर लोड इज एप्लीकेबल. ओके, नाउ द मशीन विल शो द रॉकवेल हार्डनेस नंबर HR on the machine. All this operation will done by machine automatically. Okay, the 100 number means the most hard and the 0 means least hard. Okay, so this is the rockwell hardness scale. Okay, and this is the indenter which can be made of diamond or can be of steel. Okay, first we apply a minor load P minor of 10 kg, due to which the indenter indented up to a depth of H1. After that we applied a major load which is 60 kg or 150 or 100 kg. Okay, जो हम स्केल यूज कर रहे हैं, जो रॉकवेल स्केल X क्या यूज कर रहे हैं, ABCDEF. ठीक है, उसका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका जो बॉल की जो डायमीटर है उसके पर डिपेंड करती है कि हम लोड कौन सा यूज करेंगे, स्केल कौन सा होगा और उसके हिसाब से उसकी लोड. तो ये सारी चीजें पता रहती है, तो हमें कौन सा यूज करना है उसके हिसाब से हम मेजर लोड डिसाइड करते हैं, जबकि माइनर लोड हमारा क्या रहता है, फिक्स रहता है. ओके, so this is a formula for the measurement of hardness by using the Rockwell hardness. तो Rockwell hardness scale या फिर Rockwell hardness number is equal to M minus H2 minus H1 upon 0.002, where M is equal to 100 for A, C and D scale, A, C and D scale, and M is equal to 130 for B, E, M, R, etc. Okay, the depth H1 and H2 can be measured by using the indenter. How much is it indented? Okay, there are several considerations for the Rockwell hardness test. First means before starting the test, what we have to do. Okay, मीन्स टेस्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीजें करनी है या किस किन बातों का ध्यान रखना है. ठीक है, फर्स्ट, require the clean and well positioned indenter and anvil. Okay, देखिए ये जो दिख रहा है आपको ना डायग्राम, ठीक है, एक्चुअल में ये जो आपको स्टील दिख रही है इसके नीचे यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, इंडेंटर. ठीक है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, प्रॉपरली प्लेस्ड होना चाहिए, अच्छे से क्लीन होना चाहिए. ओके, द टेस्ट सैंपल शुड बी क्लीन, ड्राई, स्मूथ एंड ऑक्साइड फ्री सरफेस. ठीक है, नेक्स्ट, द सरफेस शुड बी फ्लैट एंड परपेंडिकुलर टू द इंडेंटर. नेक्स्ट, द लो रीडिंग ऑफ हार्डनेस वैल्यू माइट बी एक्सपेक्टेड इन सिलेंड्रिकल सरफेस. इसलिए क्या करते हैं, क्योंकि देखिए इंडेंटर अगर पूरी तरह से उसमें कॉन्टेक्ट एरिया अगर उसका सही से नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वैल्यू हमको हो सकती है उसकी कुछ कम मिले. ठीक है, इसलिए हम क्या जनरली यूज करते हैं कि जो हमारा जो सरफेस हो जिसकी हार्डनेस हमें फाइंड करनी, वो सरफेस क्या हो, फ्लैट एंड परपेंडिकुलर. ओके, नेक्स्ट, द स्पेसिमेन थिकनेस शुड बी 10 टाइम हायर देन द डेप्थ ऑफ द इंडेंटर. Okay, the space between the indenter should be 3 to 5 times of the indentation diameter. Next, the loading speed should be standardized. जो हमारी स्पीड है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि कभी तेजी से लगा रहे हैं कभी धीरे लगा. इसलिए हालांकि जब ये मैनुअली करते हैं तभी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, बट जब ऑटोमेटिक मशीन यूज करते हैं तो उसमें जो लोड एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, आपका स्टैंडर्डाइज ही होता है. ओके, तो नेक्स्ट, द टाइप ऑफ इंडेंटर यूज्ड इन रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट. Diamond cone indenter are used for testing hard materials such as
hardened steel and cemented carbide. Okay, and the hardened steel ball indenter, two types. मैंने पहले बताया दो टाइप के इंडेंटर बॉल यूज करते हैं, एक डायमंड का और दूसरा स्टील का. ठीक है, तो डायमंड का भी यूज करते हैं जब हमें हार्डन स्टील और सीमेंटेड कार्बाइड की हार्डनेस निकालनी हो, और स्टील बॉल इंडेंटर आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग softer material such as fully annealed steel, softer grade of cast iron, wide variety of non-ferrous metals, and some non-metallic material also can be tested by using hardened steel ball indenter. Okay. Advantages of Rockwell hardness testing: the most widely used method for determining the hardness. Okay. Simple to perform, highly skilled operators are not required. Different types of loads and indenters can be used. The entire operation completes within 10 seconds. The results are displayed digitally on the screen if you are using an automatic machine. Okay, जैसे बट हमारा तो ये सारी चीज़ें हैं कि बहुत ही फास्ट होता है, स्किल लेवल की ज़रूरत नहीं है हमारा हमको उसको करने के लिए. जो ऑपरेशन है वो बहुत ही सिंपल है और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है. विदिन 10 सेकेंड वी कैन डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ दैट मटेरियल. Disadvantages: it is not always the most accurate hardness testing method, as even a slight error in measuring the depth difference can result in a significant error in the calculated hardness value. ओके, एक्चुअली जो क्योंकि हम इंडेंटर यूज करते हैं तो वो बहुत ही उसकी जो डायमीटर होती है जो पॉइंट है बहुत कम, तो जो डिफरेंस हो रहा है जब हमने माइनर लोड लगाया तो जिसकी वजह से जितना डेप्थ उसने एंटर किया, और जब हमने मेजर लोड लगाया उसके बाद वो कितना डेप्थ तक पेनिट्रेट किया, उसको जैसे ही हम क्या करते हैं लोड रिलीज करते हैं मेजर लोड, तो इंडेंटर क्या करता है आपका पुश बैक करता है, मटेरियल कुछ अपने रिगेन करता है, जिसकी वजह से जो डिफरेंस है वो मेजर करते हैं हम तो उसको मेजर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत एरर उसमें आ सकता है. ओके, द टेस्ट लोकेशन मस्ट बी कंप्लीटली फ्री ऑफ ऑल कंटेमिनेशन, दैट इज स्केल, फॉरेन बॉडीज और ऑयल. ठीक है, जहाँ हम कर रहे हैं उस वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं है टू इन ऑर्डर टू अचीव अ मीनिंगफुल टेस्ट रिजल्ट. ठीक है, पहले ही लिखा हुआ था कि हमें जहाँ करना है वो सारी चीज़ें क्लीन हो, ड्राई हो और वहाँ पर मॉइस्चर ना हो. ठीक है, नेक्स्ट द इंडेंटर हैज अननोन इफेक्ट ऑन द टेस्ट रिजल्ट, दैट इज इफ द इंडेंटर इज वॉर्न एंड द पॉइंट ऑफ द टिप इज नो लॉन्गर सफिशिएंटली एक्यूरेट. ठीक है, मतलब हमारा जो इंडेंटर यूज कर रहे हैं अगर हम जो इंडेंटर यूज कर रहे हैं उसका जो शेप है या फिर जो पॉइंट है टिप अगर वो एक्यूरेट नहीं रहा तो उसकी वजह से क्या हमें वो सही से पेनिट्रेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारी जो रीडिंग हो या फिर जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो एक्यूरेट ना हो, थोड़ी सी उसमें एरर आने की चांसेस रहता है. तो ये चीज़ हम ध्यान रखें कि जो हम इंडेंटर यूज कर रहे हैं वो खराब ना हो, टूटा हुआ ना हो उसका पॉइंट. ओके, with increasing hardness it becomes increasingly difficult to distinguish between the material. Okay, so next is the Brinell hardness testing. A Swedish J.A. Brinell announced Brinell hardness test. He placed an indenter with a hard ball to the surface of a metal. During testing period, the weights are maintained constant at indicated time. A low order microscope measures the diameter of the indentation. The value of diameter will be transferred respectively into the value of Brinell hardness number. Okay, in this test एक्चुअली करते क्या है कि जो भी हमारा इंडेंटर होता है उसको हम मटेरियल पे प्रेस करते हैं विथ लोड फॉर अ small time or the indicated time. Okay, here the standard procedure that the test be made with a ball of 10 mm diameter under a load of 3000 kg for ferrous metals, and the loaded ball is pressed into the specimen for at least 10 seconds. Okay, अगर हमारा जो मेटल है स्पेसिमेन है जिसको हमको टेस्ट करना वो अगर फेरस है तो हम क्या करते हैं हमारा जो इंडेंटर यूज कर रही है जो इंडेंटर है इसका डायमीटर कितना होता है 10 mm और जो लोड अप्लाई कर रहे हैं इज 3000 kg एंड फॉर द टाइम ऑफ 10 सेकेंड 10 सेकेंड तक के लिए हम क्या करते हैं उस लोड को अप्लाई करते हैं. जैसे लोड अप्लाई करते हैं उसकी वजह से क्या होता है
ये बॉल उसके अंदर एक डेंट क्रिएट करता है, ठीक है। फिर उस डेंट की जो डायमीटर है हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और उस जो भी हमारा डाटा निकल रहा है उसको हम क्या करते हैं, जो इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में पुट करके हम क्या करते हैं, ब्रिनल हार्डनेस नंबर फाइंड करते हैं, ओके। Next, but for the non-ferrous, these parameters are different, in which load of 500 kg is applied for 30 seconds. Okay, the same indenter is used, that is with the diameter of 10 mm, but the load is 500 kg and the load is applied for the 30 seconds. Diameter of the impression, जो impression यहाँ पर बन रहा है, the diameter of the impression produced is measured by means of microscope containing a ocular scale, usually graduated in tenth of millimeter, permitting estimate to nearest of 0.05 mm. एक्चुअली ये 0.05 mm जो है ये क्या है आपका, जो आप माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं जिसमें क्या लगा हुआ है, ऑकुलर स्केल, ये इस कम से जो इतनी सी इतनी छोटी रीडिंग को भी क्या कर सकता है, वो मेजर कर सकता है, ठीक है। तो हम जो यहाँ पर इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है डायमीटर का, उसको हम स्केल से मेजर नहीं कर सकते, हम मेजर करते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ओके। ब्रिनल हार्डनेस नंबर, जो कि क्या करता है, शो करता है कि उस मटेरियल की हार्डनेस कितनी है। द ब्रिनल हार्डनेस नंबर और सिंपली द ब्रिनल नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द लोड यूज्ड इन किलोग्राम बाय द एक्चुअल सरफेस एरिया ऑफ द इंडेंटेशन इन स्क्वायर मिलीमीटर, ओके। जो हमारा लोड है वो केजी किलोग्राम में, और जो हमारा जो सरफेस एरिया मीन्स यहाँ पर जो डायमीटर निकल के आया है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया निकालते हैं, और सरफेस एरिया की यूनिट किसमें रखते हैं हम, मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये इज द फॉर्मूला, देखिए ये हमारा डायमीटर, डी इज द डायमीटर ऑफ इंडेंटर, स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ द impression created due to the ball indenter, okay. The formula used is P by pi d by 2 into d minus under root of d square minus d square. तो जो भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज को हम इसे पुट करते हैं, और फाइनली वी गेट द ब्रिनल हार्डनेस, ओके। वेयर P is the test load in kg, D is the capital D is the diameter of ball, and ball means the indenter used, okay, and the small d is the average impression diameter of the indentation. तो हमारा impression बन रहा है, इसका diameter है। So what are the advantages of Brinell hardness testing? The Brinell method can be used for testing non-homogeneous material, that is casting. वो मटेरियल, वो प्रोडक्ट जिसको हमने क्या किया, कास्टिंग मेथड से बनाया है, उनमें क्या होता है, होमोजेनिटी नहीं रहती। तो those metals or those materials which are casted can be tested with the help of Brinell hardness testing, because the large ball comes into contact with many crystals, ठीक है। A choice can be made between large number of test force and the ball diameter for the wide variety of applications. Relatively large test indenters that are easier to measure, the rather small weaker indenter. The specimen surface can be rough. तो जो नहीं कि स्मूथ हो तो ही कर पाएगा, रफ हो तो भी ये कर सकता है, ठीक है। So these are the advantages of Brinell hardness test. Next, the disadvantages. The surface quality of the specimen must be good. ये आपको लग रहा होगा कि जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये आपको लग रहा होगा कितना बड़ा है, एडवांटेजेस कम है और डिसएडवांटेज ज़्यादा, ऐसा नहीं। पॉइंट्स जो है डिफाइन करने की वो ज़्यादा है, बड़ी दिख रही है बस, ठीक है। The surface quality of a specimen must be good because the indenter is measured optically. Indent is measured optically. This means that the test location must be prepared. Okay. जो स्पेसिमेन जैसा पे एडवांटेज में लिखा कि जो हमारा सरफेस रफ है उसकी भी हम कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर हमें टेस्टिंग करनी है उसको हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। द सरफेस क्वालिटी ऑफ स्पेसिमेन मस्ट बी गुड बिकॉज द इंडेंटर इज मेजर्ड ऑप्टिकली। एक्चुअली क्या है कि उसको डस्ट ना हो, क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं उसमें, जो
इंडेंटेशन हो रहा है उसकी डायमीटर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल लेंसेज यूज कर रहे हैं। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, वो सरफेस को साफ करना पड़ेगा। बट जरूरी नहीं है कि स्पेसिमेन हमारा रफ होगा तो हम उनको यूज नहीं कर सकते हैं, बट हमें उस एरिया को क्या करना पड़ेगा, क्लीन अप करना पड़ेगा या फिर प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर टेस्टिंग। हाई रिस्क ऑफ डिफॉर्मिंग द मटेरियल टू बी टेस्टेड व्हेन टेस्टिंग इन द मैक्रो रेंज विद टेस्ट लोड इज, ठीक है, एंड कॉन्सिक्वेंट रिस्क ऑफ मेजरिंग द एरर ड्यू टू वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बॉल को इंडेंट करते हैं तो जो मटेरियल का डिफॉर्मेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, वॉल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एरर आने के चांसेस है। जो डायमीटर हमें मेजर करना है, इंडेंटेशन का जो डायमीटर मेजर करना है वो उसको मेजर करके, देखिए माइक्रोज में होता है, माइक्रो मिलीमीटर में हम मेजर करते हैं, तो थोड़ा बहुत एरर आने के चांसेस इसमें रहते हैं। लिमिटेशन in applying the method on thin specimen of very hard material। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो हार्ड मटेरियल है उसके थिन स्पेसिमेंस के साथ ये स्पेसिमेन थोड़ा सा लिमिटेशंस है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। द प्रोसेस इज स्लो, जो कि जैसे कि हमारा रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट था वो क्या था, बहुत ही कम टाइम ले रहा था, 10 सेकेंड में रिजल्ट दे रहा था। बट ये क्या है, थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है। इट विल टेक 30 to 60 सेकेंड, though it is not more but more than in comparison to the Rockwell hardness test। Okay, so this is all about the Brinell hardness test. Next one is the weaker hardness test। Okay, the test make the use of diamond square based pyramid indenter with 160 degree। Here is some misprinting, actually it is degree। ठीक है, तो 136 डिग्री एंगल बिटवीन द अपोजिट फेसेस। जो हम इंडेंटर इसमें यूज कर रहे हैं उसका जो शेप क्या होता है, डायमंड स्क्वायर शेप का होता है, जो कि एंगल जो है दोनों फेसेस के बीच में, अपोजिट फेसेस के बीच में कितना होता है, 136 डिग्री। ओके, द लोड रेंज इज वेरिएबल फ्रॉम 5 to 1 kg इन स्टेप्स ऑफ 5 kg। 5 के अंतराल में हम क्या कर सकते हैं, 5 से लेके 120 तक लोड यूज कर सकते हैं, करते हैं। इट प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूअस स्केल ऑफ हार्डनेस एंड सो इट इज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर रिसर्च वर्क। वीकर हार्डनेस टेस्टिंग मशीन इज समवॉट सिमिलर विद टू द ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। ओके, द पिस्टन एंड द डैशपोर्ट ऑफ ऑयल इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द रेट एंड द ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग। ठीक है, जो लोड हम लगा रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करें, पिस्टन और डैशपोर्ट ऑफ ऑयल, जिससे क्या हो कि हमारा जो लोड है वो यूनिफॉर्मली लगे और एक टाइम तक के लिए ही लगे। द टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय प्लेसिंग द स्पेसिमेन ऑन द एनविल एंड इज रेज्ड टिल इट क्लोज टू द इंडेंटर पॉइंट। The load is then gradually applied to the indenter and then removed। The load time is about 20 seconds। After the anvil is lowered, a microscope is swung over the specimen। Okay, the load is then gradually applied to the indenter and then removed। The loading time is about 20 seconds। After the anvil is lowered, a microscope is swung over the specimen। ठीक है, हमें क्या करते हैं इसमें कि जो लोड लगा रहे हैं, ठीक है, लोड लगाया हमें कितने के लिए, 20 सेकंड के लिए। जैसे ही हमने उससे लोड हटाया, माइक्रोस्कोप आपके माइक्रोस्कोप लाते हैं और उससे हम क्या करते हैं, उसकी डेप्थ मेजर करते हैं। The diagonal of the square indenter is measured to an accuracy of 0.001 mm। ओके, ठीक है, ये रहा हमारा इंडेंटर, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड इंडेंटर। ठीक है, जो दो फेसेस हैं, अपोजिट फेसेस, इनके बीच में जो डिग्री होता है कितना, 136 डिग्री। और here small d is the diameter of the indenter। This is the sample। okay, the measurement of impression diagonal, तो क्या था, उसके बाद हम क्या करते हैं, एवरेज लेके उसका d निकालते हैं। तो here is the formula by using which we can find the weaker hardness number। VHN is equal to P upon A। P is the load applied in kg, P A is the area। okay, A is the surface area, P by A। here 2p sin theta by 2 into b स्क्वायर। ओके, एक्चुअली द एरिया को जो हम आप निकालोगे तो एरिया के टर्म में क्या हो रहा है, ये आपको पूरा याद है, साइन स्क्वायर 2 sin थीटा डी स्क्वायर बाई दिस। ओके, एंड जब इसको हम पूरा सॉल्व करोगे आप,
साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी पुट करोगे इसमें 160 डिग्री 136 डिग्री जब पुट करोगे तो आपको जो फाइनल जो रिलेशन बनता है वो क्या होता है, VHN इज इक्वल टू 1.8544 इंटू P बाई डी स्क्वायर. ओके, actually it is a small d. Okay, here I have this is a misprint. This is a small d. Okay, advantages of weaker hardness testing: the indentation always have the same shape whatever be the load. This makes the measurement independent of the load. एक्चुअली जो हमारा इंडेंटेशन होता है इतना हार्ड होता है कि वो उस पे लोड का कोई असर नहीं होता, उसके शेप में कोई चेंजेस नहीं होता, क्योंकि हम यूज ही क्या कर रहे हैं, डायमंड शेप यूज करते हैं. ओके, द हार्डनेस ऑफ hardened steel or soft material can be determined using large or small load respectively. This test is very useful for testing hardness of polished or nitride surface due to small impression made on the test. ठीक है, वो मटेरियल्स या वो प्रोडक्ट जो कि क्या हो, पॉलिश किए हों और नाइट्राइड सरफेस जिसके ऊपर लगाया है उसकी हार्डनेस मेजर करने के लिए ये ज़्यादा यूजफुल होता है. ठीक है, दिस टेस्ट इज एक्यूरेट एंड इज सुटेबल फॉर मेटल एज थिन एज 0.15 mm. ओके, इतनी थिकनेस तक की हम मेजरमेंट उसके हार्डनेस को मेजर कर सकते हैं. द हार्डनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग वीकर हॉट हार्डनेस टेस्टर इन विच इंडेंटर्स इज मेड ऑफ सफायर. ओके, जो हमारा इंडेंटर हम यूज कर रहे थे इधर, ठीक है, जो हमने यहाँ पर यूज किया है डायमंड स्क्वायर बेस पिरामिड इंडेंटर. ठीक है, जब हमारा क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ हमें टेस्टिंग करनी है, तो उस डायमंड इंडेंटर की जगह पर हम क्या यूज करते हैं, इंडेंटर मेड ऑफ सफायर. ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस. नेक्स्ट, द डिसएडवांटेजेस ऑफ वीकर हार्डनेस टेस्टिंग: it takes more time for each measurement and so it is not suitable for industries. It is time taking process. ठीक है, weaker hardness takes time in comparison to the Brinell and Rockwell test, so it is not suitable for the industry. क्योंकि इंडस्ट्रीज में हमें जल्दी जल्दी करना होता है कि हम जल्दी करें और उसकी वैल्यू निकालें. When irregularities are present, then the measurement taken by the weaker shows more deviation than those of Brinell test. Okay, so by studying three methods, we can say that the Rockwell hardness test is more suitable and is widely used for testing the hardness of any material. Okay, so this is all about the hardness testing. Thank you.